Hi. So this is Praveen sir here. I'm going to teach you certain chapters from physics, specifically class 10th state board gravitation. That's what I'm planning to go for. But before I start with the chapter directly, I would like to brief you all people with something which is very, very important for physics. So what exactly physics is? Why is physics so important? What is that which we need to learn when we are talking about physics? And what are those branches of physics which are so special to be discussed in multiple domains? And if I'm talking about gravitation, which branch of physics actually deals with gravitation and what are the basics that we need to prepare before we enter into this particular domain of understanding physics. So I'm trying to do all these things so that physics and learnability towards physics becomes a game of play for you. तो हम एक छोटा सा काम करेंगे, पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली फिजिक्स क्या है. मेरी बात समझना, ठीक है? क्योंकि जनरली कैसा होता है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड डाइसी टू अंडरस्टैंड any topic unless and until we are clear about the subject. अभी आप जो साइंस पढ़ते हो, this science is basically divided into three parts: physics, and then we have got chemistry, and then we have got biology. So if I'm talking about physics, what is it? If I'm talking about chemistry, what is it? And if I'm talking about biology, what is it? In the entire video session, we are going to discuss those steps one by one. Okay? So I'll start with the definition of physics on board. You people will write it down with me and try to be along. With an example, we'll start the things around. धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा evolution हुआ, step by step, human being ने evolve किया है ना. We have evolved a lot. So from the entire evolutionary process, we have come to the terms of physics. तो मैं एक छोटे से example से आप लोग को वहाँ ले चलता हूँ, जहाँ पर कि हम देखेंगे कि हम कैसे physics में entry किए. और वहां से लेकर के फिर न्यूटन, फिर और बड़े बड़े साइंटिस्ट, देन वी हैव आइंस्टाइन, देन देयर लॉट ऑफ पीपल अराउंड एंड देन नाउ वी, राइट? तो जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो एक बात का विशेष ख्याल रखना है, वो ये कि आप अपने आप को फिजिसिस्ट समझो. नाउ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड व्हिच यू नीड टू फॉलो. इट इज एन इंस्ट्रक्शन, रादर इट इज अ लेक्चर इंस्ट्रक्शन. You guys will make separate notebook for physics. No other subject has to be written in that particular book. Point number one. Point number two, any chapter that you have started, you're not going to intermingle or write any other chapter into that area unless and until the chapter is completed. Right? Point number three, if possible, you guys try to have multiple color pens. Have red color, blue color, black color, green color pens, so that if suppose I try to give certain very important points and references and questions and maybe some illustrations, some very interesting examples, some real life assignments to you people to get along, you guys should be able enough to get through the righteousness of that topic. Okay, right? So noting those special points will help you to have a very good idea about physics in the future terms. Okay, so you'll have a very good collection of notes which can be used by you, your people, your friends, your colleagues, and many more things around you can really utilize that particular notes and be successful on that part. It will be very, very helpful. Okay, so what I want is make a proper notes with the help of 3 to 4 color pens if possible. Separate notebook without any issues. Do not try to miss any lecture in series. If there is a lecture which is going on, a topic which is going on, do not miss the topic. What does that mean? What does that mean? If suppose today you are sitting here for video lecture, at least for 2.5 hours, do not get distracted into something else. Point number one. Point number two, do not miss any other video lecture scheduled in the given training schedule, training timetable. Okay, so it's like, part 1 lecture is today, part 2 lecture will be tomorrow, then after 3rd lecture, then after 4th lecture, covering the entire topic. So do not miss any lecture if possible. However, I'm trying to put all the lectures on the YouTube so that it becomes accessible for everybody to get along, but still do not miss the lectures. Okay, so we'll take a very small example to define physics. On the whiteboard, I'm going to tell you exactly what physics is, and then from there we are going to deal with some very beautiful example and then get into something called as gravitation from there. Right? So the target of this part will be to take you up to mechanics. I'll take you up to mechanics, not after that. Then next part onwards, I'll tell you what exactly mechanics is, what are the pillars of mechanics, what is it that you need to know when you have to study mechanics. Yes, mechanics क्या होता है सर? आप बार-बार mechanics क्यों बोल रहे हो? Because mechanics is one of the major branch जिसका की gravitation part है.
समझ में आई बात? तो ग्रेविटेशन समझने के पहले आप मैकेनिक्स समझ जाओ, ठीक है? मैकेनिक्स आप समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रेविटेशन धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट 2 पार्ट होगा आज का और जो अगला पार्ट होगा ये इसी पर फोकस होगा कि हमारा मैकेनिक्स क्या है। एंड इन द सेकंड पार्ट आई विल इंट्रोड्यूस यू पीपल विद समथिंग कॉल्ड एज ग्रेविटेशन, और वहां से फिर हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा। दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन 9th 10th CBSE स्टेट बोर्ड, 11th 12th JEE Mains NEET, for some ICSE students who belong to 8th 9th and 10th category, as well as for those people who want to know something at least about gravitation. Okay, however separate lectures have been designed for all the modules, but if you see the basics of all the lectures it will really help you around to be on the very much uniform stage. Okay, so let's proceed. I'll give an example of a big stone rolling down from mountain leading to the development of something called as wheel discovery. A big stone rolling down from the market. It's not stone, actually it is a rock. A big rock rolling down from the mountain leading to the discovery of something called as wheel, the first invention that we had. I'm saying discovery because nature already plans everything. Man simply has to explore, get into it and put it into his own experiential status. So actually all the inventions that we have done are nothing but discoveries. But okay, you can select the word which you want. Let's proceed. Next part is here. Guys, do you people know how the wheel was formed? Wheel, चक्का कैसे बना था? Wheel पहली बार, the first invention that the man had. क्या हुआ? एक स्टोरी है, एक छोटी सी स्टोरी है. I would like to share with all of you people कि एक बार कुछ लोग जंगल में घूम रहे थे, घूमे जा रहे. सडनली क्या हो गया, एक आदमी जाके पहाड़ के बगल में खड़ा हो गया. ध्यान से समझना, ये स्टोन एज के पहले की बात. तो एक आदमी, स्टोन एज के टाइम की बात आप बोल सकते हो, एक आदमी पहाड़ के बगल में जाके खड़ा हो गया. और जब वो खड़ा था इतने में उसने क्या देखा कि पहाड़ के ऊपर से एक स्टोन ऐसा गोल 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 करके घूम के आ रहा है. समझना है? जब वो बड़ा सा पत्थर पहाड़ के ऊपर से नीचे आ रहा था तो उसके रास्ते में एक झाड़ पड़ा, झाड़. उसने उस झाड़ को तोड़ दिया, उस पत्थर ने उस झाड़ को तोड़ दिया और उस पत्थर के साथ में वो झाड़ भी पत्थर के ऊपर लग गया और सब रोल होके नीचे आने लग गया और आके जमीन पे धड़ाम से गिरा. अब लोग ये सोचने लग गए कि इतना बड़ा झाड़, इतना बड़ा पेड़, इस पत्थर ने बड़े आसानी के साथ में अपने ऊपर लाके रोल किया और रोल करके लाके जमीन पे पटक दिया. राइट? इसका मतलब अगर हम ऐसी कुछ रोल होने वाली चीज बना सके, मेरी बात समझना, अगर हम ऐसी कुछ रोल होने वाली चीज बना सके तो शायद हम ये जो भी सामान यहाँ से उठाकर वहां पर लेकर जा रहे हैं बार बार, जानवर मारा उठा के लेके गए, सामान ले रहा है उठा के लेके गए, हम जो भी चीज उठा के लेके जा रहे हैं ये बहुत आसान हो जाएगा. तो इन्होंने एक ऐसा गोल घूमने वाला ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हम व्हील कहते हैं. बाद में व्हील का अपना एक साइंस है कि व्हील कैसे बना, फिर उसमें क्या हुआ, उसको लाइट वेट बनाया गया, पहले वो हेवी वेट था, ये सारी चीजें बात की बातें हैं. बट अंडरस्टैंड दिस कि व्हील का बेसिक पैदा कहाँ से हुआ? वो पत्थर से. राइट? तो इसी तरह से हमारा फिजिक्स डेवलप होता है, इसी को हम एक्चुअली फिजिक्स कहते हैं. मेरी बातों को बहुत गहराई से समझना मैं क्या कह रहा हूँ. ठीक है? तो अब मैं बताने ये जा रहा हूँ कि फिजिक्स एक्चुअली किसको कहते हैं और किस सेटअप पे वो डिपेंड करता है. ठीक है? राइट? तो अभी मैं बोर्ड तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, बोर्ड सब लोग देखेंगे वापस से. दिस इज द बोर्ड. राइट? सो फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद, सबसे पहली बात ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन, कोई भी चीज देखना. कोई नई चीज आई, मेरा ध्यान चले गया, सेब ऊपर से गिरा, न्यूटन ने सोचा अरे क्या हुआ, वो उठा के खा भी सकता था ना. सेब गिरा, अच्छी बात है, मैं उठा के खा लूंगा. राइट? लेकिन फिर न्यूटन ने सोचा कि अरे क्या हुआ ऐसा कि जो सेब ऊपर से नीचे ही गिरा, ऊपर नहीं गया. यस? तो ये जो सोच है, ये ऑब्जर्वेशन की जो सोच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फिजिक्स का पहला पार्ट है, ये पहला स्टेज है. दूसरा, हम जो भी सोचते हैं अब उसको एनालाइज करें. एनालिसिस करना बहुत जरूरी. मतलब ऊपर से सेब गिरा, मुझे लगा, बराबर, ये ऑब्जर्वेशन है. ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ये भी ऑब्जर्वेशन है. अच्छा, ये ऊपर से नीचे गिरा तो ऊपर क्यों नहीं गया, साइड में क्यों नहीं गया, अटक क्यों नहीं गया, ये एक एनालिसिस है. ठीक है? तो क्वेश्चनिंग करना इज एनालिसिस.
ठीक है, आप क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन करके चीजों को एक एक पार्ट करके उसको अलग करते हो, है ना, फ्रेगमेंट करते हो। सर उसके बाद क्या होता है, आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हो। आपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढे तो उसको आप नोट करेंगे और आंसर्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके उन आंसर्स को दिमाग में बिठाएंगे। आपने एनालाइज किया, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस मिले, क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिले, उन आंसर्स के बीच में आपने एक लिंक एस्टैब्लिश किया और वो लिंक एस्टैब्लिश किया तो आपके दिमाग में आपने उसको रख लिया। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग। अब आपने अंडरस्टैंड कर लिया और इस अंडरस्टैंडिंग का प्रूफ क्या है? आपने अंडरस्टैंड किया, ये आपकी सच्चाई। इस अंडरस्टैंडिंग का प्रूफ क्या है? सो फॉर द मैटर ऑफ प्रूफ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ध्यान रखना, साइंस आज साइंस सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सारी बातें एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर सकता है ना। अगर वो कोई बात एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ नहीं करता है तो वो बोलता है कि ये बात हम नहीं मानेंगे। हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ नहीं कर लेंगे, है ना। तो साइंस का एक, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का एक बहुत ही मेजर सेक्शन एक्सपेरिमेंटेशन भी है ना। तो फिजिक्स भी क्या करता है, यही काम करता है, इट डज द वर्क ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, यस। और उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी बातें फिर पता चलेंगी। तो आपने यहाँ पे कुछ लिखा था एनालिसिस वाले चीज में, लिख करके उसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके दिमाग में रखा था। अभी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट का जो आउटपुट आएगा उसको भी लिखोगे। अब ये दिमाग में नहीं रखोगे, इसको पेपर पे रखोगे। तो जब आप इन सारी चीजों को पेपर पे रखते हो तो इट इज कॉल्ड एज इन्फरेंस। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास में दो बार चीजें पैदा हुई। एक बार एनालिसिस के बाद जो आपने दिमाग में रखा, दूसरी बार एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो आपने पेपर पे रखा। और ये दोनों चीजें जब आप मैच करते हैं, कौन सा वाला सर? ये जो एक्सपेरिमेंटेशन और एनालिसिस के बाद निकली हुई दो चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग और इन्फरेंस, आप इनको मैच करके आपस में अच्छे से सेटिंग बिठा करके, अच्छे से फिट करके एक कंक्लूजन निकालते हैं। ये देखो, एक कंक्लूजन निकालते हैं। मैं अब यहाँ पे कुछ बोलने जा रहा हूं, यार ध्यान से सुनना। यहां से लेकर यहां तक ये जो हमने किया है ना, ये प्योरली साइंस है। इस यहां तक सिर्फ फिजिक्स, सिर्फ केमिस्ट्री, सिर्फ बायोलॉजी ऐसा नहीं है, इट इज प्योरली साइंस। मेरी बात आप लोगों को समझ में आती होगी मैं क्या कह रहा हूं। यहां से लेकर यहां तक आपने जो कुछ भी किया वो साइंस है। साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी। क्या? साइंस का मतलब सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। तो हमने जो यहाँ पर ब्रांच ऑफ साइंस लिखा है ना, इसके बदले अगर मैं ऐसा लिख दूं, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ, ये लाइन बोल दूं तो भी चलेगा। समझ आ रही बात? यस, क्योंकि सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब ये सारी चीजें होती हैं। जब आप ये काम करते हो तो सिस्टमैटिक स्टडी हो जाती है। अब ये काम आप किससे कनेक्टेड होकर करते हो? अगर आपने ये जो आपने काम किया है, ये काम अगर आप लाइफ प्रोसेस से कनेक्ट होकर के करते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट होकर के करते हो, तो मैं उसको बायोलॉजी बोल दूंगा। यही पार्ट आप केमिकल से कनेक्ट होकर के करते हो तो मैं उसको केमिस्ट्री बोल दूंगा। और यही पार्ट आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसी चीजों के लिए करते हो जो कि फिजिकली अवेलेबल है तो मैं उसको फिजिक्स बोल दूंगा। अब मैंने बहुत बड़ा बात यूज किया, फिजिकली अवेलेबल है। मैंने आगे की जो लाइन लिखी है ना, ये आप लोग को कंफ्यूज कर सकता है, बड़ा खतरनाक है। इसमें दो चार शब्द है, ये देखो, सेंसिबली, परसेप्टिबल और बहुत कुछ लिखा है मैंने, है ना। मैं इसको आप लोगों के लिए आसान बना देता हूँ, राइट। और मैं आसान इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि साइंस की एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है ना। अगर आपको साइंस समझना है, इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड साइंस, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप साइंस की उस लैंग्वेज को समझो, साइंस के उस लिटरेचर को समझो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है ना वो यूज करते थे। मेरी बात समझो, जब आप साइंस पढ़ रहे होते ना तो कंसीडर योरसेल्फ टू बी लाइक अ साइंटिस्ट। आप साइंटिस्ट को ऐसा मानकर पढ़ो, तब उसमें क्या होगा कि आप साइंटिफिक लैंग्वेज अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। और एक बार आपने साइंटिफिक लैंग्वेज डेवलप कर लिया तो आपको ये सारे वर्ड्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड आप लोग को अभी तक लगते होंगे, है ना, वो बहुत आसान हो जाएंगे। और एक बार आपको साइंटिफिक वर्ड्स आसान हो गए तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स, आपके लिए प्रॉब्लम्स, आपके लिए सम्स, आपके लिए सारी चीजें मजाक हो जाएंगी। ठीक है, राइट। तो हम साइंटिफिक लिटरेचर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो सब लोग ऐसा समझो कि आप अपने अंदर एक साइंटिस्ट बिठा लो और मेरी बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, हमने सिस्टमैटिक स्टडी की बात की ना, तो जब हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं तो वो साइंस होता है। सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा है ना, कुछ खास बातें, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, इन्फरेंस, कंक्लूजन, ये सब जब आप करते हो तो एक सिस्टमैटिक स्टडी हो जाती है सर। अब ध्यान से सुनना, मैं अब जो बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, बराबर है। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है। सर सेंस ऑर्गन्स मतलब आईज, नोज, स्किन, टंग, ईयर, बराबर है ना। तो हमारे पास में 5 सेंस ऑर्गन्स है। ध्यान से सुनना, ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स जो हमारे हैं ना, वो बाहर की तरफ एक्सटर्नली एक्टिव है। मतलब बाहर अगर पत्ता भी हिलता है तो आपको दिखाई देगा, हवा चल रही है आपको दिखाई देगा, बाहर कोई एक्टिविटी होगी आपके कान में पड़ेगी आपको सुनाई देगा। मैं कुछ बोल रहा हूँ आपसे बाहर बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है, आपके कान में जा रही है बातें। जरा समझना, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जिस चीज को समझ सकते हैं, ध्यान देना, ये पांचों सेंस ऑर्गन सारे के सारे एक चीज को नहीं समझ सकते। किसी भी एक चीज को ये पांचों एक साथ नहीं समझते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं जिस चीज को देख रहा हूं उसको सुन पाऊंगा ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। मैं जिसको देख पा रहा हूं मैं उसको फील भी कर पाऊंगा ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। मैं जिसको देख पा रहा हूं उसको मैं टेस्ट भी कर पाऊंगा ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। मैं जिसको टेस्ट कर पा रहा हूं उसको सुन पाऊंगा ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। तो ये 5 सेंस ऑर्गन जरूरी नहीं है कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर सारे के सारे काम करें, राइट। तो अगर मेरा कोई भी एक भी सेंस ऑर्गन किसी एक पर्टिकुलर चीज को समझ सकता है तो मैं उसको क्या बोलूं? मैं उसको बोलूंगा कि मैं उसको परसीव कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? परसीव कर सकता हूं। मेरे वर्ड्स समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं उसको परसीव कर सकता हूं और वो चीज मेरे परसेप्शन में है। जैसे एग्जांपल, मैं जो लेक्चर दे रहा हूं आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मेरे लेक्चर को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बाद में उसके बाद में वो सारी चीज आपके अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? लिंक समझ में आ रहा है? पक्का? वैसे ही ये सेंस ऑर्गन्स, पांचों सेंस ऑर्गन्स अगर किसी एक भी चीज को कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके साथ में उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं उसको परसीव कर पा रहा हूं। क्या बोलूंगा? मैं उसको परसीव कर पा रहा हूं और ये मेरे परसेप्शन में है। बराबर है? पक्का? और परसेप्शन में कैसे है? मेरे सेंस ऑर्गन्स की मदद से है ना? यस कि नो? मेरे सेंस ऑर्गन्स के मदद से। इसके लिए मैं इसको सेंसिबल परसेप्शन, क्या बोलूंगा? सेंसिबल परसेप्शन। अब मेरी बात सुनो, हमने यहाँ पे जो भी बातें लिखी है, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सारी चीजें हम अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करके ही करते हैं। बराबर है? आप ऑब्जर्वेशन भी कैसे करोगे? या तो आंख से देख के, या तो कान से सुन के, या तो इसी से करोगे, है ना। एक्सपेरिमेंटेशन करोगे तो वापस आपकी यही सारी चीजें काम करेंगी, आपके ऑर्गन्स ही काम करेंगे, है ना। तो इस तरह से मैं ये सारी बातें, सिस्टमैटिक स्टडी जो कर रहा हूं, ये एक्चुअली क्या है? ये एक सेंसिबल परसेप्शन की कोशिश है। क्या? सेंसिबल परसेप्शन की कोशिश है। अगर कोई चीज मेरे सेंसिबल परसेप्शन में बैठ जाएगी तो मैं उसको मान लूंगा, नहीं बैठेगी तो नहीं मानूंगा। क्लियर है? अब मेरी बात नेक्स्ट स्टेप की बात, पहली बात क्लियर हो गई सेंसिबल परसेप्शन की। अब नेक्स्ट स्टेप की बात सुनो। हर वो चीज जो आपके सेंस ऑर्गन के परसेप्शन में बैठती है, क्या बोल रहा हूं मैं? हर वो चीज जो आपके सेंस ऑर्गन के परसेप्शन में बैठती है उसको फिजिकल बोलते हैं। क्या बोला मैंने? हर वो चीज जो आपके सेंस ऑर्गन्स के परसेप्शन में बैठती है उसको फिजिकल बोलते हैं। इसी को फिजिकल बोलते हैं। एक वर्ड है फिजिकल, उससे फिजिक्स निकला हुआ है। हम बार बार वर्ड यूज करते हैं, फिजिकल 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 फिजिकल, है ना। फिजिकल मतलब जिसको आप टच कर सको, जिसको आप फील कर सको, जिसको आप सुन सको, जिसको आप देख सको, जिसको आप टेस्ट कर सको, जिसको आप स्मेल कर सको, वो फिजिकल है। अगर पांचों में से कोई भी चीज, पांचों में से कोई भी ऑर्गन अगर किसी चीज को परसीव करने में फेल हो जाता है तो वो चीज फिजिकल नहीं है। सर एग्जांपल इमोशन। आप इमोशन को टच कर सकते क्या? सुन सकते क्या? देख सकते क्या? स्मेल कर सकते हो? टेस्ट कर सकते हो? नहीं। सो इट इज नॉट फिजिकल। आइडिया नॉट फिजिकल, है ना, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस। फिजिकल मतलब हर वो चीज जो आपका सेंस ऑर्गन परसीव कर सकता है। अब यहां से अपने डेफिनेशन को हम गार्नर करते हैं, बहुत मजा आएगा। देखो, सिस्टमैटिक स्टडी
of all the physical things. क्या बोला मैंने? Systematic study of all the physical things is called as physics. खत्म. समझा? फिजिक्स का डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है? भूमिका वगैरह? यस ऋषिकेश, अरे समझ में? तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑल द फिजिकल थिंग्स इज कॉल्ड एज फिजिक्स. इस बात को आप दिमाग में बिठा ले. अब हम वापस से अपने बोर्ड की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, ये देखिए आपका, ये रहा बोर्ड. आइए, सो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ये बातें. कौन सी बातें? ऑब्जर्व, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग. ध्यान रखना ये पेयर है. ये पेयर है, एनालिसिस के बाद अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, और वैसे ये दो भी पेयर है, एक्सपेरिमेंटेशन, इन्फरेंस, और फिर कंक्लूजन. सर रिलेटेड टू, देखो मैंने कुछ लिखा है. क्या लिखा है? रिलेटेड टू नेचुरल फिनोमिनन. नेचुरल फिनोमिनन which is sensibly perceptible. क्या लिखा मैंने? sensibly perceptible is called as physics. अभी आपको समझ में आ गया ना sensibly perceptible का मतलब क्या होता है? Right? This should not confuse you anymore. So just note down this particular definition and the way I have written, note it like this only. Do it. Just do it. So now I'm writing something. Tell me what is it? It is, yes, it is branches of physics. Sir, branches of physics, yes. Whatever physics you had started right from 9th standard, understand this. Right from 9th standard, actually physics had started much earlier in your syllabus, but let me consider it from 9th standard itself. So right from 9th standard, whatever physics you have been doing, the topics in physics, actually they belong to certain or other branches that physics deals with, right? तो it is important कि आपको उसका भी एक छोटा सा आइडिया हो जाए कि भाई ब्रांचेस होते कौन कौन से. ठीक, तो उसमें से जो सबसे पॉपुलर ब्रांच है, एक्चुअली दिस वाज द फर्स्ट ब्रांच दैट वाज डेवलप्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, उसका नाम है मैकेनिक्स. सबसे पुराना ब्रांच है, सबसे पुराना. आपने जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों के मोस्टली नाम सुने होते हैं, मैक्सिमम नाम वो सब यहीं से है, मैकेनिक्स से है. वैसे बाकी फिजिक्स में भी सब अपने अपने ग्रेट लोग हैं, पर जो मैक्सिमम नाम आपके दिमाग में बार बार घूमता है, जैसे न्यूटन, तो he contributed a lot in the world of mechanics. Right, so mechanics is also called as the core branch of physics, from where everything started, to be very very honest. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ते हो, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसके बाद का टॉपिक हमारा वही है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के अंदर भी मैकेनिक्स घुसा हुआ है. ठीक है, तो मैकेनिक्स इज वेरी वेरी स्पेशल. तो पहला जो ब्रांच है वो है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स क्या होता है सर, हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बट फिलहाल दिमाग में आप ये बात रखिए कि पहला जो ब्रांच है वो है मैकेनिक्स. दूसरा ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी, फिर वी हैव गॉट ऑप्टिक्स, देन वी हैव वेव्स एंड वेव थियरीज. ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऐसी बहुत सारे, मैग्नेटिज्म. इन सारी चीजों में से सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से भी कनेक्टेड जो ब्रांच है उसका नाम है मैकेनिक्स. ठीक है, तो इन सारे, देयर आर मेनी ब्रांचेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाहिए तो, मेनी ब्रांचेस, मेनी. एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, है ना, देन यू हैव गॉट ऑप्टिक्स, जो लाइट से डील करता है. आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर, ग्लासेस, लेंसेज, वो सब इसमें आता है. ठीक है, इसके बाद यू हैव गॉट वेव थियरी, ये भी एक है. फिर उसके बाद में यू हैव गॉट क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स.
क्वांटम फिजिक्स, है ना, ऐसे बहुत कुछ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी अपने आप में एक अलग ही वर्ल्ड है। ऐसे तो ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही आता है, बट ठीक है, कई बार लोग इसको अलग से भी रखते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। इसमें से जो मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट पुराना है, ओके, दैट इज बेसिकली मैकेनिक्स। ये देखो मैं यहाँ पे इसको रेड से लिख रहा हूँ, मैकेनिक्स। क्लियर है, राइट सर? अब मैकेनिक्स क्या होता है, आप लोग को ये समझना बहुत जरूरी है। आज के मेरे लेक्चर का यही एक पर्पस है कि मैकेनिक्स क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, मैकेनिक्स क्यों होता है ये मैं आपको बता दूं, मैकेनिक्स की डिटेल्स आपको बता दूं। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मैं आपको मैकेनिक्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है? यस, सो बी देयर विद द कंप्लीट ओपननेस ऑफ द माइंड। आज आप वो चीज सीखोगे जो आज तक आपको पता नहीं थी, ठीक है? क्या होता है मैकेनिक्स में बताऊंगा। एक काम करो ना, तुम लोग ये नोट कर लो, ये पार्ट नोट कर लो फटाक से, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो फटाफट। मैं कैमरा चेंज कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको, हो नहीं रहा है वो, इसकी वजह से वाईफाई का थोड़ा इश्यू है। ये लीजिए, अब दिखा आप लोग को। यस, प्लीज नोट दिस डाउन। बहुत सारे ब्रांचेस हैं, इन सारे ब्रांचेस में से मैकेनिक्स इज द मेन पार्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू